homework Karaka Parichayam Kuruta, and for that question here we have answers also. Okay, so here on the second page we have answers of the question कारक परिचयम कुरुत. बाकी सब जो लिखा हुआ है वो इग्नोर करो. सेकंड क्वेश्चन अभी तक आपने सीखा नहीं है. We have to just focus on first question. So in the first sentence the underlined word was jalam and the karaka is karma because it is object. In the second one the word underlined was sudha khandena and the answer for it is karanam. Karakam is karanam. It is instrument. Sudhakhanda means chalk. Then we have Chitrapatam. That is karma. Chitrapatam is movie. Then in the fifth one we have only one word highlighted, Churikaya. Churikaya is a karanam. Churika means knife, which we use as an instrument, which we use as an instrument to cut. So Churika is a knife instrument, karanam. Focus on the sixth question, Rathat. Rathat is apadanam. Ratha means chariot. So someone is moving out from the chariot. So from ke liye we use apadanam panchami vibhakti. Then we have next word Udyane, which is a place. So we have to write down Karakam as Adhikaranam. So please note the answers quickly. Solve नहीं किया है तो एटलीस्ट आंसर्स नोट करके रखो. सॉल्व किया है तो प्लीज चेक योर आंसर्स. Then in the eighth sentence Rama word was highlighted and Rama is doer of the action, subject. So in Sanskrit we called it as karta. Rama is karta. In the ninth sentence Avakashat is the word which was highlighted. Again it is Panchami Vibhakti, sounds like Rathat, Devat. So the Karakam is Apadanam. Avakash is space. Then we have Chhatrebhyah. Chhatra means student. यहाँ पे छात्रेभ्य students, many students and too many students. यहाँ पे TO2 sampradanam, to give someone, for someone. So here the vibhakti is chaturthi and the karakam is sampradanam. Chalo, you have 2 seconds to write down or check all the answers. I hope many of you have corrected all the answers, have solved basically this particular worksheet. Arman, Harshit, that's great that you have all correct answers. Wow, Ria. Okay. Okay, so students, thank you so much. So ये तो हो गया homework discussion. Now today we're going to start with the first lesson of the year, and I'm sharing the PDF. Yes, so here on the screen we have PDF of a first lesson, that is Sushtu Gruhitah Chaurah. So same like 8th standard semester 2, in the 9th standard also you will be having paragraphs in your exam, and you have to just understand the para and you have to write down the answers. Okay, so for this particular first lesson there will be no questions such as write down the translation. ये लेसन फर्स्ट लेसन का किसी को भी ट्रांसलेशन लिखने के लिए नहीं आने वाला है. There will be only few lessons and poems which are allotted for translation work. So यहाँ पे English translation by heart करने की जरूरत नहीं है. You have to understand the Sanskrit paragraph
Sanskrit questions and Sanskrit answers. There will be only one question which we have to write down in English for this particular lesson, and that is Madhyama Bhashaya Uttaram Likhata, personal response question. Okay, so we're going to start with the lesson, and afterwards I'll give you the answers of all your queries regarding lesson. Okay, so Prathamah Pathaha, first lesson, Prathamah, first Pathaha, lesson, chapter, Sushtu Gruhitah Chaurah. तो अब ये जो सुष्ठु गृहीतः चौरः है, इसका मीनिंग मैं अभी रिवील नहीं करूंगी वरना स्टोरी का मजा चला जाएगा. तो मीनवाइल जैसे जैसे हम स्टोरी सीख रहे हैं, आपको ही बताना है एंडिंग में कि इसका मीनिंग क्या है. ओके, एंड ऑफ कोर्स प्रथमः घटकः राइट साइड में लिखा हुआ है. सो प्रथमः इज फर्स्ट, घटकः इज योर पार्ट. तो 4 पार्ट्स में आपका टेक्स्ट बुक डिवाइड किया है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट सेमेस्टर 1 में आने वाला. देखते हैं अभी क्या क्या है स्टोरी में. आई विल रीड द स्टोरी, ऑल्सो आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. सम शब्दार्थाः यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स आर रिटन ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन. यू कैन कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक. ऑल्सो संधि विग्रहs आर रिटन. ओके, सो फर्स्ट है देवदत्तः नाम कोऽपि धनिकः आसीत्. So Devadattah is the first character of the story. Dhanikah means rich man. देखो, you can observe on the screen there is शब्दार्थ written Dhanikah, rich man, new word for you. So यहाँ पे okay, many of you are telling me the meaning of title. Yeah, that's correct. But थोड़ा थोड़ा उसको हमें और polish करना है. So first story को understand करते हैं. Yes, so देवदत्त नाम का एक धनिक था. There was a rich man named as देवदत्त. यहाँ पे जो वर्ड है कोपी, वो संधि विग्रह है. इनफैक्ट सॉरी, इट इज अ संधि, हमें विग्रह करना है. तो संधि क्या होता है? सो संधि इज अ कंबाइंड वर्ड. दो वर्ड्स को जब मिक्स कर देते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यार हमें शॉर्ट फॉर्म्स बहुत पसंद है. ओके, अगर हमें एक बड़े से वर्ड का शॉर्ट फॉर्म मिल जाए, जैसे टेक केयर को टीसी लिख दे तो काम जल्दी हो जाता है. गुड नाइट को जीएन लिख दे तो काम जल्दी हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे से भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स तो आप यूज करते हो वाइल चैटिंग, वाइल डूइंग अ कॉन्वर्सेशन और वाइल जस्ट स्पीकिंग ऑल्सो. तो सेम राइटिंग में भी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म संस्कृत में भी यूज किया होते थे. एंड इसीलिए दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता था, दो बड़े वर्ड्स को कंबाइन किया जाता था, एक छोटा शॉर्ट फॉर्म मिक्सचर बनाया जाता था, उसको ही कहते थे संधि. तो ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन बिलो द पिक्चर संधि विग्रह इज रिटन. कोपी इज स्प्लिट एज कह प्लस अपी. कैसे याद रखना ये कोपी को कह प्लस अपी क्यों हुआ? तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, को में जो ओ साउंड कर रहा है एंडिंग में, ओ चेंजेस टू अह, ओ चेंजेस टू अह, ओ का बन जाता है विसर्ग. सो इसीलिए को का बन गया कह. दिस इज माय फर्स्ट वर्ड कह. ओ चेंजेस टू विसर्ग, करेक्ट अरमान. ओ चेंजेस टू विसर्ग, ओ चेंजेस टू अह. एंड एस चेंजेस टू अ. एस यानी कि एस को संस्कृत में बोलते हैं अवग्रह, बट हम लोग याद रखेंगे एस चेंजेस टू अ, अवग्रह चेंजेस टू अ. तो इसीलिए मुझे दो वर्ड्स मिल गए, कह प्लस अपी. कह प्लस अपी. कह इज अ क्वेश्चन वर्ड. कह मीन्स हु, अपी इज ऑल्सो. सो कह प्लस अपी, कोपी. And hence the meaning of the first line is Devadattah नाम कोपी धनिकः आसीत्. There was a certain, कोपी का मीनिंग यहाँ पे लेंगे certain, rich man named देवदत्त. कोई तो एक रिच मैन, कोई तो एक धनिक वहां पे था, वो धनिक का नाम था देवदत्त. डोंट राइट डाउन ट्रांसलेशन, just write down shabdarthas and sandhi vigrahas which are already given on the screen, and also listen what I'm saying, listen the meaning, understand the story, because after that you have to solve some question answers also.
Okay, students, let's focus on the second line. Ekada tasya dhanasyutah luptah. Ekada once. Tasya his. Dhanasyutah money bag. And luptah stolen. चोरी हो गया. स्यूतः वर्ड आपने सुना है. स्यूतः means bag. धनस्यूतः means money bag. So once his money bag was missing or was stolen. गायब हो गया उसका मनी बैग अचानक से घर से ही. उसने घर में ही एक बड़ा सा बैग में, बड़े से बैग में उसका पैसा भर के रखा था. एंड दैट मनी बैग वाज सडनली robbed or stolen, or you can say missing. Then we have third sentence as tasya gruhe षड भृत्याः आसन. So शब्दार्थ में आपको ये न्यू वर्ड दिया हुआ है. भृत्याः means servants. कितने सर्वेंट्स थे? षड. षड मीन्स 6. तो तस्य गृहे इन हिज हाउस देयर वर 6 सर्वेंट्स. उसके घर में 6 नौकर काम करते थे. ओके, समवन इज आस्किंग धनस्यूतः इज कंपाउंड. तो यस, धनस्यूतः इज कंपाउंड, बट विल डिस्कस द ग्रामर वाला पार्ट afterwards in the grammar topics. Okay. Yes. तो रिया का क्वेश्चन है आसन का मीनिंग क्या है? आसन का मीनिंग सिंपली there were 6 servants in his house. tasya his gruhe in house षड 6 भृत्याः servants आसन there were. Then let's move ahead. तेषु एव एकः चौरः. तेषु means among. एव itself, among them itself. एकः, एकः means one. चौरः means very simple word जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चोर. Yes, perfect. The answer is thief. So among them itself there was one thief. स्यात् यानी कि था. There was. So there was one thief among them. इति तस्य मतम. इति तस्य means his. मतम means opinion. So it was the opinion of देवदत्त कि ये जो 6 सर्वेंट्स मेरे घर में रहते हैं उनमें से ही कोई एक थीफ है. अभी देखो, ये जो देवदत्त है उसका कुछ फैमिली नहीं था, अकेला रहता था. 1 सिंगल मैन विथ 6 सर्वेंट्स. तो अगर 7 लोग घर में रह रहे हैं और पैसा तो देवदत्त का ही है, वो खुद का पैसा थोड़ी ना चोरी करेगा. तो अभी रिमेनिंग जो 6 लोग है उसमें से ही किसी ना किसी ने चोरी किया है वो बैग, ऐसा देवदत्त को लग रहा है. It was an opinion of Devadatta that one among that 6 servants was the thief. Let's move ahead. चौरम ग्रहीतुम सह वीरबलम सहायम अयाचत. तो जैसे कि आपको पिक्चर में और एक येलो कलर या ग्रीन कलर जो भी ड्रेस पहना हुआ एक इंसान दिख रहा है. वो जो इंसान है उसका नाम है वीरबलह. वीरबलह इन संस्कृत, बट इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं बिरबल. तो बिरबल was known for his intellectual powers. You can say कि वो बहुत होशियार था. इनफैक्ट वो लॉजिकली थिंक करता था एंड इजीली मिस्ट्रीज सॉल्व कर लेता था. तो इसलिए बिरबल का कैरेक्टर स्टोरीज में बहुत फेमस है. तो अभी ये जो देवदत्त है, बिरबल उसका फ्रेंड है. एंड हेंस यहाँ पे बताया गया है कि चौरम ग्रहीतुम. ये ग्रहीतुम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रहीतुम टू कैच. ग्रहीतुम टू कैच. 4th लाइन में देखो, पहला ही वर्ड है ग्रहीतुम टू कैच. सह मीन्स ही, देवदत्त. सह मीन्स ही, देवदत्त. वीरबलम टू द बिरबल. सहायम हेल्प. अयाचत आस्क फॉर. सो देवदत्त आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम बिरबल टू कैच द थीफ. अयाचत आस्क फॉर, ग्रहीतुम टू कैच. लेट्स मूव अहेड. वीरबलः अवदत्. तो ये पहुंच गया है बिरबल के घर पे देवदत्त. देवदत्त ने अपना प्रॉब्लम उसको शेयर किया, प्रॉब्लम बताया उसको. एंड नाउ वीरबलः अवदत् यानी कि बिरबल सेड. अवदत् मीन्स सेड. बिरबल ने बोला. क्या बोला? मित्र, ओ डियर फ्रेंड, अद्य टुडे सायंकाले इन द इवनिंग तव योर्स सर्वान ऑल भृत्यान
servants, all the servants. सर्वान भृत्यान, विशेषण विशेष, इनफैक्ट प्रोनाउन एंड नाउन का पेयर है. ऑल द सर्वेंट्स. मम मीन्स माय, गृहम मीन्स घर, होम, एंड प्रेषय मीन्स सेंड. तो प्रेषय का भी मीनिंग लिखा हुआ है शब्दार्थ में. प्रेषय इज न्यू वर्ड फॉर यू. प्रेषय सेंड. इति does. So it is said by Birbal that send all your servants to my house in the evening today itself. देवदत्त को बिरबल ने बोला कि सब सर्वेंट्स को, सब नौकरों को मेरे घर पे आज शाम को भेज देना. अभी देखो ये जो हमारा बिरबल है, जैसे कि मैंने बोला, बहुत इंटेलिजेंट है एंड इसीलिए उसने कुछ ना कुछ प्लान तो सोचा ही रहेगा. एंड हेंस वो बोल रहा है पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली कि शाम को भेजना. मतलब शाम तक, सायंकाल तक, इवनिंग तक वो तैयारी करके रखेगा, कुछ ना कुछ प्लान करके रखेगा कि इजीली उसको थीफ कौन है वो समझ में आ जाए. ओके तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैरा खत्म हो जाता है. फर्स्ट पैरा में हमें 3 कैरेक्टर्स पता चले. पहला है देवदत्त, दूसरा है वीरबल, एंड थर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज भृत्याः, सर्वेंट्स. आई होप आपने शब्दार्थ एंड संधि विग्रह नोट डाउन किए. कंपल्सरी नोट डाउन करना है. ब्लैंक, एकदम एब्सेंट माइंडेड यहाँ पे लेक्चर में नहीं बैठना. इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन समथिंग. You have 2 seconds more. Please write down sandhi vigrahas and shabdarthas. And if you have any kind of a doubt in this particular paragraph, please ask. First para में कुछ भी doubt है तो please पूछना. कोई शब्द पता नहीं है, मिस हो गया, सुना नहीं. धनस्यूता is money bag, लुप्तः is stolen, miss or missing. भृत्याः servants, shad is matam is opinion, shad is 6. Ayachata is ask for. Sahayam is help. Yes अरमान, आपका आंसर करेक्ट है. वो हम एंड में डिस्कस करेंगे. अयान, द मीनिंग ऑफ स्यात, स्यात एक वर्ब है. सो हम यहाँ पे मीनिंग लेंगे कि देयर वाज अ thief among them. Yes Harshit, I'm reading all your answers, messages. Okay students, so I hope first para is clear to you all. Let's move ahead, and here on the screen we have a second para. So यथा निश्चितम सर्वे सेवकाः. यथा निश्चितम as decided, जैसे डिसाइड हुआ था सुबह देवदत्त और बिरबल के बीच में कि सब सर्वेंट्स को जो है घर पे भेजना है. लाइकवाइज सर्वे सेवकाः, ऑल द सर्वेंट्स, वीरबलस्य ऑफ द बिरबल, गृहम गृहे यानी कि हाउस, आगताः came. So all the servants came to Birbal's house as decided between Devadatta and Birbal. यथा निश्चितम एक डिफिकल्ट वर्ड है. as decided, गृहम is house, home, आगताः came. बेसिकली स्टोरी है इसीलिए सब पास्ट टेंस के वर्ब यूज किए. तो पास्ट टेंस क्या होता है 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, और भी हम सीखने वाले उसका एक्सटेंडेड वर्जन आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स. ओके देन वी हैव नेक्स्ट लाइन, वीरबलेन पूर्वमेव. अब ये देखो, ये जो वर्ड है पूर्वमेव, इट इज अ संधि विग्रह. स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, थर्ड संधि लिखा हुआ है पूर्वमेव. सबका ध्यान उधर चाहिए अभी. आई डोंट हैव दैट स्पॉटलाइट टुडे, सो प्लीज सब लोग एकदम एंड ऑफ द स्लाइड में देखो, थर्ड वाला नंबर है पूर्वमेव. इट इज अ संधि. वी विल कॉल्ड इट एज म मा मी संधि. आज से आपका नया संधि का हिंट स्टार्ट हो गया. संधि पूर्वमेव को हम कहेंगे म मा मी संधि. अब ये म मा मी संधि क्या होता है? जब भी हमें ये म के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें मे मिला है, मे मा मू म मी, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. ऐसे म के कॉम्बिनेशंस दिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे ममा मिमी संधि. और ये सॉल्व कैसे होता है? सो इन ममा मिमी संधि
द फर्स्ट वर्ड ऑलवेज एंड्स इन हलंत और इनकम्प्लीट म। जैसे कि यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे पहला वर्ड पूर्वम, म के यहाँ पे हमने कट किया, स्प्लिट किया, एंड वो जो म है वो इनकम्प्लीट म है। तो 100% ममा मिमी संधि में पहला वर्ड हाफ या इनकम्प्लीट म में ही एंड होता है, पूर्वम। एंड नेक्स्ट वर्ड श्योरली स्टार्ट्स विथ वॉवेल, नेक्स्ट वर्ड श्योरली स्टार्ट्स विथ स्वर। हमेशा अ आ इ ई उ ऊ ए आई स्वर से ही नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा। तो देखो कितना इजी है, ममा मिमी संधि को स्प्लिट करना बहुत इजी है। ममा मिमी संधि जब भी हमें दिखेगा, म के यहाँ पे हमें दो वर्ड्स को कट करना है, स्प्लिट करना है। उसमें से पहला वर्ड का एंडिंग हमेशा इनकम्प्लीट म रहेगा, एंड नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग हमेशा एक वॉवेल यानी कि स्वर रहेगा। आई होप ममा मिमी संधि इज क्लियर टू यू ऑल। पूर्वमेव संधि विग्रह इज पूर्वम प्लस एव। It is important to give the plus sign between two words which are separate. Okay, I am explaining the mama mimi sandhi last time because many of you wants it again. Purvameva is a mama mimi sandhi. We called it as mama mimi sandhi क्योंकि उसमें म का combination दिख रहा है, that is may. अभी इसको कैसे solve करते हैं? तो in mama mimi sandhi always split or cut your word at म। म के जॉइंट पे हमें वर्ड कट करना है। कट करने के बाद फर्स्ट वर्ड ऑलवेज एंड्स इन इनकम्प्लीट म एंड नेक्स्ट वर्ड श्योरली स्टार्ट्स विथ स्वर। पहले वर्ड का एंडिंग हमेशा हलंत म रहेगा, नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग हमेशा स्वर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस ऑन द सेकेंड सेंटेंस व्हिच वी वर डिस्कसिंग। वीरबलेन पूर्वमेव, बीरबल ने पहले से ही, पूर्वमेव प्रीवियसली, बिफोर इटसेल्फ, सर्वेषां कृते फॉर एवरीवन, कृते मीन्स फॉर, सर्वेषां एवरीवन फॉर एवरीवन, समानोन्नतयः, ये वर्ड को रीड देखो कैसे करना है, समानोन्नतयः, समान एंड उन्नतयः, ऐसे दो वर्ड्स वहां पे मिक्स है, समान एंड उन्नतयः, समानोन्नतयः। समानोन्नतयः means of same length, unnati is length, height, and samana means same, of same height or of same length. यष्टिकाः means sticks, काठी, छोटे छोटे sticks. आनीताः brought, आनीताः brought. So previously itself Birbal has brought some sticks for everyone of same length. पहले से ही बीरबल ने कुछ समान ऊंची वाली लकड़ियां लाकर रखी थी। यहाँ तक क्लियर है? तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स, समानोन्नतयः ऑफ सेम लेंथ एंड यष्टिकाः स्टिक्स। चलो, तो अभी ये जो टाइम उसने लिया था सुबह से शाम तक, उसने क्या तैयारी किया, ये तो हमें समझा कि उसने सेम लेंथ की 6 स्टिक्स लाकर रखी थी। लेट्स मूव अहेड, आगे क्या हुआ देखते हैं। सह सेवकान अवदत, ही सेड, अभी आपको पता है अवदत मीन्स सेड। बीरबल ने सेवकों से कहा, ही सेड टू ऑल द सर्वेंट्स, क्या कहा उसने? भोहो, भोहो मीन्स ओ एवरीवन, पश्यन्तु, पश्यन्तु मीन्स लुक एट दीज, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एताहा माया यष्टिकाहा, एताहा दीज एंड माया यष्टिकाहा, यष्टिकाहा तो अभी आपको पता है स्टिक्स, माया यष्टिका मीन्स मैजिकल स्टिक। तो अभी ये जो बीरबल है हमें पता है बहुत ही शातिर है, होशियार है, एंड इसीलिए देखो थोड़ा क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, डरा रहा है उनको, ताकि इजीली उसमें से जो भी चोर है वो डर जाए और अपना
गुनाह जो है वो कबूल कर ले। तो एक ट्राई दे रहा है बिरबल, और बिरबल उनको डरा रहा है। वो बोल रहा है दीज आर मैजिकल स्टिक्स, ये देखो ये जो आपके सामने स्टिक्स है ना सेम लेंथ की, वो सब मैजिकल स्टिक्स है। आगे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, थोड़ा और सेवकों को डराता है और बोलता है तासु अमंग देम, तासु मीन्स अमंग देम, ये सब स्टिक्स में से एकाम यष्टिकाम स्वीकृत्य, एकाम यष्टिकाम वन वन स्टिक, स्वीकृत्य taking one stick from all these sticks, सर्वैः everyone देवदत्तस्य गृहं गन्तव्यम्, everyone goes back to देवदत्ता's house by taking one stick, एक एक काठी उसमें से लेकर सब लोग देवदत्त के घर पे फिर से वापस चले गए। गंतव्यम went back, गृहम हाउस, देवदत्तस्य ऑफ देवदत्त, एंड स्वीकृत्य ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेकिंग, स्वीकृत्य मीन्स टेकिंग, हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं स्वीकार करना, वही वर्ड संस्कृत में है स्वीकृत्य, टेकिंग। ओके, गंतव्यम तक एक्सप्लेन कर दिया है, आगे देखते हैं। आगे और क्या बिरबल ने बताया, ये सिर्फ स्टिक लेकर घर पे चले जाना है? नहीं, श्वः, श्वः मीन्स टुमारो, नेक्स्ट डे, प्रभाते इन द मॉर्निंग, पुनः आगंतव्यम। अभी देखो ये जो वर्ड है पुनरागंतव्यम, ये भी एक समास है, सॉरी ये भी एक संधि है, एक्सट्रीमली सॉरी, पुनरागंतव्यम इज अ संधि। स्क्रीन पे लिखा हुआ है देखो, पुनरागंतव्यम, वहां पे मैंने हाईलाइट किया है रा के यहाँ पे। यस प्रज्ञा, प्रज्ञा आई एम सेइंग पुनरागंतव्यम इज अ संधि। इन पुनरागंतव्यम वर्ड रा को मैंने हाईलाइट किया है। रा इज हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन बिकॉज वहां पे हमें वर्ड को स्प्लिट करना है, देयर इज अ जॉइंट एट रा। अब ये रा को स्प्लिट कैसे करेंगे, तो र चेंजेस टू विसर्ग एंड आ is a starting of next word. Yes, Harshit, correct. Harshit is saying Ra is a joint where we have to cut the word, where we have to split the word. So Ra can be split as Ra changes to Visarga and the next word starts with A. अगर सिर्फ र होता तो next word starts with A. अगर री होता तो next word starts with E. अगर रू होता तो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ऊ, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं। तो बेसिकली र चेंजेस टू विसर्ग एंड नेक्स्ट वर्ड एज पर द कॉम्बिनेशन स्वर से स्टार्ट होगा। सो पुनरागंतव्यम, पुनः प्लस आगंतव्यम। डिटेल में आप ये संधि के लेक्चर में सीखने वाले हो। अभी आपको सिर्फ याद रखना है र रा री री संधि में र चेंजेस टू विसर्ग एंड नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल। इन ममा मिमी संधि म changes to, sorry, first word ends in ma, next word starts with vowel. In ra ra ri ri sandhi, first word ends in visarga, next word starts with vowel. स्वर। चलो पुनरागंतव्यम का इनफ ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया, मीनिंग देखते हैं। श्वः मीन्स टुमारो, प्रभाते इन द मॉर्निंग, पुनः आगंतव्यम मीन्स कम अगेन, पुनः अगेन, एंड आगंतव्यम कम। ओके, कल सुबह फिर से वापस आना विद दैट स्टिक, आज ये स्टिक लेकर जाओ और कल सुबह फिर से वापस आ जाओ, ऐसा बीरबल ने सब सर्वेंट्स को कहा। चलो, वी हैव 2 मोर लाइन्स ऑन द स्क्रीन। ये न केनापी, ओ स्टार्टिंग में ही आ गया संधि केनापी, विच इज द सेकेंड संधि ऑन द स्क्रीन। केनापी बहुत ही सिंपल सा संधि है। यहाँ पे आ का कॉम्बिनेशन दिखता है, कहाँ पे है आ, तो रेड कलर से हाईलाइट किया, देखो ना के एंडिंग में आता है आ, एंड वी हैव टू स्प्लिट इट एज केन प्लस अपी। केन अगेन एक क्वेश्चन वर्ड है एंड अपी इज ऑल्सो। केन मीन्स बाय whom, बाय whom, केन प्लस अपी। आई नो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत सारा important words, नया संधीज यहाँ पे आ रहा है, बट प्लीज फोकस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डाउट है फिर से रिपीट करना है, प्लीज टेल।
So kenapi is split as kena plus api. Kena word ending in a and api starts with a. So a plus a is a. केनापी का आंसर है केना प्लस अपी. ओके लेट्स मूव अहेड. मीनिंग समझ लेते हैं ऑफ द लास्ट सेंटेंस. ये ना केनापी धनस्यूतः चोरितः. अभी देखो सब लोग ये स्टिक लेके निकल ही चुके थे, ऑलमोस्ट गेट तक पहुंच चुके थे, बट हमारा बीरबल जो है उसको बहुत मजा आ रहा है. ओके उसको डराने में, सबको धमकाने में बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए बीरबल जाते जाते और बोलता है एक्सक्यूज मी, और एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, सुनो क्या इंस्ट्रक्शन है. देखो ये न केनापी, हुएवर धनस्यूतः चोरितः, जिसने भी ये धनस्यूत यानी कि मनी बैग चोरितः चोरी किया है, whoever has stolen the money bag, तस्य his यष्टिका stick, अंगुली मात्रम by a finger length, दीर्घा long, भविष्यति will become. So whoever has stolen the money bag, his stick will become long by a finger length. जिसने भी मनी बैग चोरी किया है उसकी स्टिक, सिर्फ उसकी ही अकेले की स्टिक जो है उंगली जितना लेंथ से और बढ़ने वाली है. मतलब अपनी उंगली जितनी होती है उतनी और ज्यादा बड़ी होने वाली है, हाइट में ग्रो करने वाली है. दीर्घा भविष्यति विल बिकम लॉन्गर बाय अ फिंगर लेंथ. तो देखो इंपॉर्टेंट वर्ड वहां पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, अंगुली मात्रम, बाय अ फिंगर लेंथ और अ फिंगर लेंथ, एंड दीर्घा इज लॉन्ग. तो लास्ट लाइन का सब वर्ड्स आई होप क्लियर है. ये न केनापी मीन्स हुएवर. स्यात मीन्स यहाँ पे मीनिंग लेना है हैज. स्यात बेसिकली हैज, हैव, हैड ऐसे बहुत सारे वर्ब्स का काम करता है. तो यहाँ पे मीनिंग है हैज. हुएवर हैज चोरितः स्टोलन, धनस्यूतः मनी बैग, तस्य हिज, यष्टिका स्टिक, अंगुली मात्रम by a finger length, दीर्घा भविष्यति will become longer. चलो आई होप सेकेंड पैराग्राफ इज ऑल्सो क्लियर. तो अभी तक हमने ये देखा, पहले पैराग्राफ में सिर्फ कैरेक्टर्स देखे और मेन तो देखा कि चोरी हो गया था धनस्यूतः मनी बैग. सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखा कि सब बीरबल के घर पे आते हैं और उनको क्या मिलता है, एक एक मैजिकल स्टिक. मैजिकल स्टिक लेके वो घर तो जा रहे हैं, बट जाते जाते बीरबल ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिसने भी मनी बैग चोरी किया है उसकी जो स्टिक है विल ग्रो लॉन्गर बाय अ फिंगर लेंथ. आज के रात में ही ऐसा कुछ जादू होने वाला है भाई कि जो भी चोर है उसकी स्टिक जो है वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है. देखते हैं, लेट्स मूव अहेड. आगे स्टोरी में क्या होता है थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, स्टिल वी हैव सम टाइम. रात्रौ सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन्. रात्रौ at night, सर्वे भृत्याः, all the servants, as you can observe in the picture, all the servants are sleeping nicely. सुखेन nicely, एकदम sound sleep ले रहे हैं. रुते एकस्मात्, रुते means except, एक को छोड़कर, except one, everyone are sleeping. तो 5 लोग सो रहे हैं, एक बेचारा जो है टेंशन में. क्यों टेंशन में है? Of course you know the answer students, I know you are too smart. आंसर तो ये है कि बेचारे ने चोरी की है और इसीलिए वो टेंशन में है, और वो कंटिन्यूअसली अपने स्टिक के पास देख रहा है कि मेरी स्टिक शायद बड़ी ना हो जाए, मेरी स्टिक ग्रो ना करे, ऐसा उसको टेंशन है स्टूडेंट्स. तो देखते हैं सेकंड लाइन में वो क्या बोलता है. सह अचिंतयत, अचिंतयत मीन्स थॉट, ही थॉट, उसका थिंकिंग यहाँ पे दिखाया गया है. तो आगे का जो इन्वर्टेड कॉमा है, स्टार्ट से इन्वर्टेड कॉमा एंड होता है वहां तक, वो उसका थॉट प्रोसेस है. ओके उसके थिंकिंग में ये सब उसके मन में चल रहा है, वो ऐसे बात नहीं कर रहा है खुलेआम. देखते हैं मन में क्या बातें कर रहा है वो. तो वो जो एक अकेला सर्वेंट जाग रहा है वो सोचता है श्वः प्रातः, श्वः मीन्स टुमारो, नेक्स्ट डे, प्रातः इन द मॉर्निंग, मम चौर्यम, माय थेफ्ट, मम मीन्स माय, चौर्यम मीन्स थेफ्ट, प्रकटितम भवेत, प्रकटितम भवेत विल बी रिवील्ड. यहाँ पे भवेत यूज किया है which always used for future assumptions. फ्यूचर assumptions के लिए यूज किया जाता है भवेत. प्रकटितम रिवील्ड,
कॉट नहीं लेंगे, यहाँ पे मीनिंग रिवील देंगे, प्रकट होना, सबके सामने आ जाना। ओके, सो माई थेफ्ट विल बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन टुमारो, बिकॉज मेरी जो ये स्टिक है वो ग्रो करने वाली है, एज सेड बाय बिरबल। देन नेक्स्ट क्या सोचता है देखते हैं। अतः हेंस अहम आई अधुना एव, नाउ इटसेल्फ, अधुना मीन्स नाउ, एव इटसेल्फ, मम माय, यष्टिकाम स्टिक, अंगुली मात्रम बाय अ फिंगर लेंथ, कर्तयामी, कर्तयामी कट, आई शैल कट माय स्टिक नाउ इटसेल्फ बाय अ फिंगर लेंथ। तो इसको लगा कि बीरबल होशियार रहेगा, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मोर स्मार्ट देन बीरबल, एंड इसीलिए उसने क्या बोला था, उंगली जितना, एक उंगली की हाइट जितना बढ़ने वाला है ना, मैं एक उंगली के हाइट जितना स्टिक कम कर देता हूँ, तो फिर स्टिक अगर ग्रो भी किया तो किसको समझने वाला है। सो ही वॉज एक्टिंग लाइक अ वेरी ओवर स्मार्ट वन। अभी देखते हैं उसकी जो ओवर स्मार्ट क्या कहेंगे हम, एटीट्यूड है उसका ओवर स्मार्ट का, वो काम करता है कि नहीं करता है। लेट्स मूव अहेड। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यष्टिकाम, यष्टिका अभी आपको पता है स्टिक, अंगुली मात्रम बाय अ फिंगर लेंथ, एंड कर्तयामी इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, आई शैल कट। Now let's move ahead. Last sentence on the screen. Iti chintayitva. After thinking so, chintayitva, thinking. After thinking so, तथा कृत्वा, आफ्टर डूइंग सो, मतलब उसने की वैसे सोचा भी और फटाक से कर भी दिया, कट भी कर दिया वो स्टिक। एंड देन सह मीन्स ही, दैट सर्वेंट, सुखेन सुप्तः was slept nicely. So सुप्तः means slept, सुप्तः means slept. चलो तो अभी एक लास्ट स्टोरी का पार्ट बाकी है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक वेट नहीं हो पाएगा, सो लेट्स कंटिन्यू फॉर द 5 मिनट्स द लास्ट स्टोरी पार्ट। नेक्स्ट डे देखो सब सर्वेंट्स जो है बीरबल के घर पे आ गए हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा है, देवदत्त भी वहां पे मौजूद है, क्योंकि आज पता चलने वाला है कि चोर कौन है। देखते हैं वो जो चोर है उसकी स्टिक जो है ग्रो हुई थी कि नहीं हुई थी। लेट्स रीड इन संस्कृत। अन्येद्युः, अन्येद्युः means next day. अन्येद्युः is a synonym, is a समानार्थ for श्वः. Next day, लघु यष्टिकाम. यष्टिका means, I'm sure students by now you know यष्टिका means stick. लघु means small. Length में कम, छोटी. Short, so short stick, small stick और short stick. दृष्ट्वैव, इसमें संधि है, जरा फोकस करना दृष्ट्वैव पे, दृष्ट्वा प्लस एव, दृष्ट्वा वर्ड्स वा एंड्स इन आ, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए, सो आ प्लस ए बिकम आई, दो मात्रा दिख रहे, दो मात्रा इज आई, इसलिए फर्स्ट वर्ड एंड्स इन आ, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए, दृष्ट्वा प्लस एव। ये जो स्वर संधि है थोड़े थोड़े आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपको समझेगा कि कैसे इनको स्प्लिट करना है। ओके लेट्स मूव अहेड। तो दृष्ट्वा मतलब आफ्टर लुकिंग, एव इटसेल्फ, वीरबलेन बाय बिरबल, चौरः मीन्स चोर, थीफ, सम्यक excellently, well or excellently, perfect you can say, ज्ञातः recognized, ज्ञातः recognized मीनिंग लिखा हुआ है स्क्रीन पे, गृहीतः मीन्स caught, गृहीतः मीन्स caught and च मीन्स and। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सेंटेंस में हमें टाइटल का आंसर मिल जाता है। गृहीतः वर्ड वाज देयर इन टाइटल, गृहीतः मीन्स caught, चौरः मीन्स चोर, थीफ, एंड सुष्ठु का समानार्थी वर्ड यहाँ पे यूज किया है, दैट इज सम्यक, एक्सलेंटली, वेल। सो thief was caught well और the thief was caught excellently, एकदम अच्छी आइडिया के साथ, परफेक्ट प्लानिंग के साथ thief पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? क्योंकि बीरबल ने वो छोटी स्टिक देख ली। कॉमन सेंस है, कोई भी स्टिक ऐसे रातों रात मैजिकली ग्रो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग भी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि एक रात में इतनी बड़ी हो जाए।
सो नॉन लिविंग थिंग कभी भी ग्रो नहीं करती है, बट बेचारा टेंशन में था, गलती की थी, इसीलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसने स्टिक को कट कर दिया। एंड उसने स्टिक को कट कर दिया, वही देख के बीरबल ने पहचान लिया कि यही चोर है, और अपनी चोरी छुपाने के लिए उसने स्टिक को कट किया है। उसके स्टिक की लेंथ कम हो गई है। यस आर्या, करेक्ट। इट इज द सेम लाइक तेनाली रामा। तेनाली रामा was also well known intelligent character of the stories. बहुत सारे कॉमिक्स में हमने तेनाली रामा के बारे में पढ़ा है। सेम बीरबल भी वैसा ही है, बहुत होशियार था। अभी देखते हैं फाइनली क्या हुआ। तो चोर तो पकड़ा गया, सबको पता है कि अभी वो जो 7 सर्वेंट्स है, रामू शामू जो भी है, उसमें से एक है चोर। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो चोर है बड़ा, भले उसने चोरी की है बट दिल का बड़ा अच्छा है। कैसे समझा हमें ये, तो लास्ट लाइन से समझता है। अपराधी भृत्य, अपराधी मीन्स गिल्टी, अपराधी मीन्स गिल्टी, उसको गिल्ट हो रहा है, अभी पश्चाताप हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है दिल से। वीरबलस्य पादयोः पतित्वा, वीरबलस्य ऑफ बीरबल, पादयोः मीन्स legs, feet, patitva, falling. So he fell down at Birbal's feet and swasya, his own aparadham, mistake. See, aparadhi means guilty, एक विशेषण है, aparadham is noun, aparadham is mistake. अपराधी is guilty, अपराधम is mistake. अंगीकृतवान, इसका मीनिंग लिखा हुआ है स्क्रीन पे, accepted, accepted his own mistake. वो गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, सॉरी सॉरी बोलने लगा, उसने अपनी मिस्टेक मान ली। एंड ऑल्सो क्यों दिल का अच्छा है, तो ये लास्ट लाइन की वजह से, धनस्यूतम च प्रत्यर्पितवान, कुछ उसने अभी तक यूज नहीं किया था, खर्च नहीं किया था। दैट धनस्यूत मनी बैग प्रत्यर्पितवान was returned by that servant. Okay, so thief was returned that money back. So tirtha, the meaning of samyak is excellently, well, you can say, or perfect. Excellent, well or perfect. And samyak के लिए synonym है सुष्ठु. That is the title of our lesson. प्रत्यर्पितवान returned and अंगीकृतवान accepted. तो यहाँ पे स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। देवदत्त खुश क्योंकि उसको उसका मनी बैक मिल गया, बीरबल खुश क्योंकि उसका जो मिस्ट्री है सॉल्व हो गया, अगेन एक और केस उसने सॉल्व कर दिया। एंड वो जो सर्वेंट्स है, 6 सर्वेंट्स, वो सब उसमें से 5 तो बच गए बेचारे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। एक जो है उसको भी माफी मिल गई बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर एट द एंड। ओके, सो दिस इज हैप्पी एंडिंग स्टोरी। यहाँ पे हमारा लेक्चर का भी दी एंड हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। सो बेसिकली आई होप आपने संधि विग्रह एटलीस्ट नोट डाउन किया है और शब्दार्थ। समवन वांट्स दैट फर्स्ट स्लाइड फॉर कॉपिंग द शब्दार्थ।